میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہم افسیہ کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے 3 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے فرزندو، خداوند نے اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے ماں باپ، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے، جس کے ساتھ وعدے بھی ہیں، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ کان کے پڑھے اور سنے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہم سب کو ملے۔ سب بولے آمین۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو وہ باپ اور ماں ہے۔ ہم بعض اوقات نہیں ہے، دوسرے مذاہب میں یتیم ہے، لیکن مسیح ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی ایماندار اس کا پیروکار یتیم نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دنیاوی باپ چند عرصہ کے لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہمارا خدا یسوع مسیح، اس کا قول ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ باپ کرتا کیا ہے؟ باپ اپنے بچوں کی نگہبانی کرتا ہے، باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، باپ اپنے بچوں کو سلام دیتا ہے، اور باپ اپنے بچوں کی خوشحالی اور شادمانی چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی۔ اور بائبل مقدس میں اگر ہم انسان کی کتاب، اس کا 30واں باب، اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو باپ اپنے بچوں سے کیا فرماتا ہے؟ لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، میری تعلیم کو بھولنا نہیں۔ جتنے بچے اپنے ماں باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں وہ کبھی شرمندہ اور رسوا اور ناکام نہیں ہوتے۔ جب ہم اپنے باپ کی تبیہ کو مان لیتے ہیں، پھر ہی ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو تبیہ کرتے اور بوڑھا بڑھاتے ہیں، وہ بوڑھ بناتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے پرابلم ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں یہ پرابلم رہتی ہے، کیونکہ ہم بڑھ بڑھاتے ہیں اور زندگی میں خوشحالی اور شادمانی نہیں رہتی۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم نے اس کی تعلیم کو بھولنا نہیں۔ یہ بھی تعلیم ہے کہ اپنے جسمانی ماں باپ کی عزت کرے، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے جو مجھ سے زیادہ کسی کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، کلام جو ہماری تربیت کرتا ہے، جب ہم اس میں رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر آسمان کی بادشاہی کی آواز بن جاتی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ میری تعلیم جو ہے، میرے حکم جو ہے، وہ ہمیشہ اس پر عمل کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو آسمان اور زمین کے بنانے والے باپ حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے فرما بردار بچے بننا ہے یا نافرمان؟ فرما بردار۔ اور یہ حکم ہے خدا کے کہ تو نے میری تعلیم کو نہیں بھولنا۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ کہ یاد کر کے بات ماننا، اور یہ تعلیم ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا، یہ اس کے حکم ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے
कि इज्जत की रूह से दूसरे को अपने से बेहतर जानना, यही हुक्म है कि हम उसके दिए हुए में से देना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम बात नजरअंदाज कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरी तालीम को भूलना नहीं। लेकिन हम आज का वैसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप बच्चों को कोई चीज दे दें तो उससे वापस मांगे तो बच्चे देंगे? बच्चे नहीं देते। और आज बहुत सारे लोगों की ऐसी आदतें हैं, बड़े तो हो गए हैं लेकिन आदतें बच्चों जैसी है। खुदा देता है लेकिन उसको देने के लिए हमारे दिल घबराते हैं। बाइबल की जो तालीम है, जो बाप के हकाम है, जो बाप की तालीम हुक्म है, जब हम उस पर अमल करेंगे तो फिर हम वफादार बच्चे बनेंगे। और उसका अजर क्या होगा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि तू इन उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती पाए। लोग तेरी इज्जत करेंगे, लोग तेरी पैरवी करेंगे, लोग तेरे हुक्मों के मुताबिक अमल करेंगे जब तू मेरी तालीम पर अमल कर। और दाऊद एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि तेरा कलाम मुझे मेरे साधु से ज्यादा अक्लमंद बना देता है। जब हम उसके कलाम की पैरवी करते हैं तो किसी काम में शर्मिंदगी नहीं होती। हम जहां कहीं भी कदम रखते हैं, खुदा वो जगह हमारे लिए मुकर्रर कर देता है, वो सब कुछ हमें दे देता है, वो माहौल हमें दे देता है, वहां के लोग खुदा ताबे कर देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब हम उसकी तालीम को फरामोश नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, तो फिर हमारी ऊपर निराश होगी, फिर हमें पीढ़ी और सलामती मिलेगी। ये मायूसियां, नाकामियां, शर्मिंदगियां, करवाहटें, गुर्बत, तनाव, खचाव हमारा हिस्सा नहीं रहेगी। जब हम खुदा के आइन के मुताबिक अमल करेंगे तो ये बाप में एक नसीहत है। और मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, शफ़क़त और सच्चाई तुझसे बेइंतहा ना होगी। जब अगर आप चाहते हैं कि उसकी शफ़क़त, उसका रहम, उसका प्यार आपकी जिंदगी में भरा रहे, तो फिर उसके आइन पर अमल करना सीखें। जितने बच्चे माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप उनको दुआएं देता है, उनके लिए ब्लेसिंग मांगता है। और जितने बच्चे नाफरमान होते हैं, कि कभी गुस्से में माँ बाप रावत भी करते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? ऐसी माएं और ऐसे बाप भी हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने गुस्से का इजहार कर देते। तो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल हमें ये सिखाती है कि खुदा की शफ़क़त और सच्चाई जो है वो तुझसे जुदा नहीं होगी जब तू तालीम को याद रखेगा। और मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि तुमको अपने गले का तौर बनाना और अपने दिल की पत्ती पर लिख लेना। अक्सर हमें याद दिलाना पड़ता है कि आज इतवार है, चर्च जाना है। शायद किसी के अंदर ये जज्बा हो, एक ख्वाहिश हो कि हाँ मैंने जाना है, ये मेरे बाप का हुक्म है, ये मेरे बाप की तबीयत है, ये मेरे बाप की नसीहत है, मैंने उसके मुताबिक अमल करना है। लेकिन बहुत सारे लोग उस तालीम को फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं। और लोगों का ख्याल होता है कि नहीं, मैं चर्च नहीं जा सकता। वैसे तो हालेलुया, मैं खुदा से बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन हुक्म मानना मेरे लिए, मेरी मजबूरी, हुक्म मानना मेरे लिए मुश्किल। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बाइबल की तालीम है और बाइबल में लिखा है कि तू अपनी अकल पर तवक्कुल ना करना, अपने फहम पर तवक्कुल ना करना। और मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल। जब हम अपनी जिंदगी में अपने बाप पर तवक्कुल करते हैं
तो हमारी जिंदगी की स्टोरी बदल देती है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मुशर्रफ बेटे की तालीम के बारे में आप सब जानते हैं कि बाप की मोहब्बत देख ले कि बेटा सब कुछ उजाड़ के आ गया, लेकिन बाप फिर भी उससे गले लगा। ये बाप की मोहब्बत है, ये बाप का प्यार है, उसकी शफकत है, उसका रहम है, उसका कर्ज है। और मेरे अजीजों, उसके लिए सारे बच्चे बराबर। इसलिए बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए, और कई खानदानों में ऐसे रवैये पाए जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है तो उससे ज्यादा ना मेरा बाप उससे प्यार करता है। ये वायरस है, ये गलत तालीम है। जब हम ऐसे रवैये, ऐसी बातें कहना शुरू कर देते हैं और बच्चे गलत फॉलो करते हैं। और वो कैसे? आपके गलत समझाने की वजह से वो भी कहता है बाप उससे ज्यादा उसको अजीज रखता है। और कई खानदानों में, घरानों में ऐसे रवैये देखना, और कोई ना कोई भड़ा कह देता है मुझे लगता है उससे ज्यादा तो मेरा बाप उससे प्यार करता है। और ये इब्लीस की चालें हैं। इब्लीस किसी ने भी होकर आपके घर में किसी को ऑपरेट कर सकता है। इन बातों को समझे ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझे। और तालीम, इब्लीस ने भी ये तालीम दी थी ना आदम और हवा को कि आप इस फल को खाएंगे, खुदा की मानद बन खाएंगे। और आज भी वही वायरस, वही तालीम लोगों में पाई जाती है। बड़े सुधे लोग हैं, और जब ऐसी बातें करते हैं अफसोस होता है कि क्या बाइबल को फॉलो नहीं करते, खुदा के कलाम के मुताबिक अमल नहीं करते। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में रोजमर्रा की ऐसी बातें उसको अपनी जिंदगी से खारिज कर। ये मत, ये इब्लीस है तो करके डालता है, जुदाइयां डालता है, हसद पैदा कर देता है। और लोग इस तरह के रवैये इख्तियार करते हैं, मेरा बाप तो मुझसे प्यार नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, ये कहां से बात है? किसी ने सिखाई। इसलिए ऐसी तालीम ना दे। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो तालीम दे। मैंने मेरा दोस्त है बेल्जियम में, उससे बात कर रहा था तो वो कह रहे यहाँ के जो लोग हैं गोरे हैं, इनमें और हमारे में फर्क पड़ा है। ये चाहे चर्च जाए या ना जाए, झूठ नहीं बोलते, ये झूठ नहीं बोलते, ये धोखा नहीं देते किसी को। तो एक बड़ा मुहावरा है, बगल में चलिए मुंह पे राम राम। ज्यादा दुआएं इधर होती है, ज्यादा फ्रॉड भी यहाँ पे होती है। यही ऐसे ही है ना, ज्यादा दुआएं भी होती है, ज्यादा फ्रॉड भी होती है। वो कहते हैं वहां पर ये वायरस नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो वो कह देंगे ये गलत है। अगर किसी ने खुद से गलती होगी तो वो मान लेगा मुझसे गलती, लेकिन ऐसे गलती जो है ना स्पेट दे नहीं बंदा इनसे तो सच्चा बंदा ही कोई नहीं, लेकिन झूठ ही रहता यहाँ पर फटकारियां है। इसलिए मेरे अजीजों, खासकर यहाँ के रवैये इस तरह के हैं कि हम कलाम भी ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कलाम के बरखलाफ भी बहुत ज्यादा है। अपने आप को उस तालीम के मुताबिक ढाले। वो चर्च कम जाते हैं लेकिन तालीम को फॉलो ज्यादा करते हैं। हाँ की जगह हाँ करते हैं और ना की जगह ना। ये कलाम को फॉलो करना है। असिया ने जिन्हीं देर कोटे नहीं रगड़ने खुदा दे के एक पानी एक भी गालों के नाम है, दुआ करिए, हालेलुया, गीत गाइए, ये नहीं खुदा खुश है। खुदा खुश कैसे होगा जब आप उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसते हैं। आपकी जोर से हालेलुया कहने से खुदा खुश नहीं होता, आपकी प्रस्तुति करने से खुदा खुश नहीं, आपका अच्छा सरमन पेश करने से खुदा खुश नहीं होता, और आपके रवैये से खुश होता। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें ताकि हम किस तरह चल रहे हैं। और मेरे दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और ऐ औलाद वालों, तुम अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। कई बाप माँ बाप भी बड़े गुस्से में,
ये भी नसीहत है और ये भी तरबियत है कि अपने माँ बाप की हुक्म मानो। अच्छा कई मतलब की गल नहीं देना जेडे नाफरमान बच्चे होंगे ना उन्होंने ये नहीं गल ते बड़ा जोर पाना है औलाद वालों तुम अपने बंदों को गुस्सा ना चलाओ तो इससे ना पड़े ये गल उन्होंने पल्ले पड़ लेनी ते ये नहीं बननी कि ये भी लिखा है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। आज दुनिया बड़ी तेज है, अब ये सेपरेट कर रहा है दुनिया को, लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को। जो बात मानने वाली एक का मानना नहीं, एक का नहीं माननी। लेकिन मेरे से हमने दोनों बात को माना। पहली बात